Now question number 3 first. Let y equal to x square plus 4x plus 1 whole cube plus x cube minus 5x minus 2 whole raised to 4. So students, you can see y equal to this plus this means u plus v type derivative. So for u plus v type derivative, you can differentiate easily differentiating with respect to x. So dy by dx equal to dy dx of u part plus dy dx of v part. U and v means first function plus second function. So you know that derivative of x raised to n equal to n into x raised to n minus 1. So you can differentiate it easily. X square plus 4x plus 1 whole cube becomes 3 into x square plus 4x plus 1 whole raised to 3 minus 1 means n into x raised to n minus 1. But it is not x. So into d by dx of x square plus 4x plus 1. For the second bracket, similar 4 into x cube minus 5x minus 2 whole raised to 4 minus 1 into d by dx of x cube minus 5x minus 2 means similar properties for both the brackets. Therefore, dy by dx equal to 3 into same bracket 3 minus 1 that is 2 and here derivative of x square is 2x, derivative of 4x is 4 into 1 that is 4 and derivative of 1 is 0 because of constant sum term. So, no need to write plus 4 into x cube minus 5x minus 2 whole cube into derivative of x cube 3x square, derivative of minus 5x minus 5 into 1 that is minus 5 only and derivative of minus 2 it is a constant term so derivative is 0. So you should write your answer like this dy by dx equal to 3 into this much into this plus 4 into this much into this and your additional formula d by dx of fx whole raised to n equals n into fx whole raised to n minus 1 into f dash x and finished. Now see second question. Let y equal to 1 plus 4x whole raised to 5 into 3 plus x minus x square whole raised to 8. So you can see easily or you can understand easily y equal to u into v type. For u into v type using product rule of the derivative. So what is the product rule of the derivative? See here d by dx of u into v. U and v are two functions equals u into d by dx of v means u into derivative of second part plus v into derivative of first part or you can say first part into derivative of second part plus v into derivative of second part into derivative of first part. So therefore derivative of y is dy by dx. So u into v that is u d by dx of v plus v d by dx of u. Now differentiate it. See this. Therefore dy by dx equal to this bracket as it is derivative of 3 plus x minus x square raised to 8. 8 into 3 plus x minus x square whole raised to 8 minus 1 into d by dx of 3 plus x minus x square because it is not x. Similar way जैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में कर चुके हो सेम यहाँ पर भी उसी टाइप से फॉलो करना है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है. प्लस v that is second bracket into what is the derivative of this part. देखो 3 plus x minus x square whole raised to 8 into n x raised to n minus 1 that is 5 into 1 plus 4x into raised to 5 minus 1 into d by dx of 1 plus 4x. इसका डेरिवेटिव देखो यहाँ पर ये किस टाइप का है x रेज टू n तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा गया n x रेज टू n minus 1 but it is not x into d by dx of 1 plus 4x. So its derivative becomes dy by dx equals 1 plus 4x whole raised to 5 into 8 into 3 plus x minus x square raised to 7. Now see what is the derivative of 3. देखो derivative of 3 is 0, derivative of x is 1, derivative of x square is 2x plus this bracket as it is into 5 1 plus 4x whole raised to 4 same into what is the derivative of 1, this is 0, derivative of 4x is 4 only. Now you can say so how many terms are there 1 2 and 3 terms. अब देख लो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स कितने हैं ओनली वन नंबर 8 so we should write 8 first and then this bracket 1 minus 2x here this is 1 plus 4x whole raised to 5 this part and 3 plus x minus x square raised to 7 this part.
प्लस देखो देयर आर टू नंबर 5 इंटू 4 बिकम्स 20 इंटू 1 प्लस 4x रेज टू 4 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 8। तो ये टाइप का डेरिवेटिव पहले भी कर चुके हो और ये सिंपल है, तो इजिली यू कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। तो पहले देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, u बाई v रूल मीन्स कोसेंट रूल। तो अप्लाइंग कोसेंट रूल हियर वी गेट, कोसेंट रूल क्या है, वो कोसेंट रूल को देखने के लिए इसको एंडिंग में फार्मूला दूसरे किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो पहले यहाँ पर समझ लो। तो y इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो इसका फार्मूला क्या है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से ये क्या है, u अपॉन वी टाइप, u अपॉन वी। यहाँ पर बोल सकते हो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। तो v स्क्वायर में अब क्या आ जाएगा, देखो रूट ऑफ 7 माइनस 3x होल स्क्वायर बिकम्स व्हाट, ओनली 7 माइनस 3x, and this is square root of 7 minus 3x as it is, derivative of x is 1 minus x into what is derivative of square root of, यहाँ पर देखो derivative of square root of 7 minus 3x, ये derivative of root x टाइप का है। derivative of root x क्या होता है, 1/2 root x, तो 1/2 root 7 minus 3x into d by dx of 7 minus 3x upon 7 minus 3x। now this part as it is, into 1 से कोई इफेक्ट नहीं, minus x into what is derivative of 7 minus 3x, derivative of 7 is 0, derivative of minus 3x is minus 3 upon 2 root 7 minus 3x as it is। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में ये सिर्फ ये करना है कि दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट, देखो 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू रूट 7 माइनस 3x यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स दैट इज 3x अपॉन दिस डिनोमिनेटर इंटू दिस डिनोमिनेटर, तो दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पर डाउन हो गए, और इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई, 2 इंटू, और देखो रूट इंटू दिस तो रूट रिमूव्ड दैट इज 7 माइनस 3x, या रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू रूट ऑफ 7 माइनस 3x, तो क्या बनेगा रूट ऑफ 7 माइनस 3x होल स्क्वायर, so its square root is 7 minus 3x, you can say in any way, plus 3x upon 2 into 7 minus 3x, this into this, इसका पावर क्या है हाफ, इसका पावर क्या है टोटल 1, 1 plus half 3/2। now open the bracket, 2 into 7 14, 2 into minus 3x minus 6x plus 3x upon 2 into 7 minus 3x whole raised to 3/2। now simplify 14 as it is, minus 6x plus 3x becomes minus 3x upon same denominator, that is question finished। okay, now see next one, question number 4, let y equal to x cube minus 5 whole raised to 5 upon x cube plus 3 whole cube, it is also in the form of u upon v, so applying quotient rule, dy by differentiating with respect to x, therefore dy by dx equals v into derivative of u minus u derivative of v upon v square, simple। so this bracket as it is, derivative of x cube minus 5 whole raised to 5 n x raised to n minus 1, that is 5 into x cube minus 5 bracket closed raised to 4, but it is not x, again by chain rule d by dx of x cube minus 5 minus x cube minus 5 as it is whole raised to 5, d by dx of this part, 3 into x cube plus 3 square into d by dx of x cube plus 3 by chain rule upon x cube plus 3 whole cube and whole square, देखो power into power by indices rule, so this becomes 3 into 2, so x cube plus 3 whole cube into 5 x cube minus 5 raised to 4 as it is, what is derivative of x cube 3x square, derivative of minus 5 is 0, so no need to write, या शो करना है तो शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगले स्टेप में ये स्टेप लिखना, तो x cube minus 5 whole raised to 5 as it is, 3 into this as it is, what is derivative of x cube 3x square, derivative of 3 constant term that is 0, no need to write, upon x cube plus 3 whole raised to 6, 3x square as it is, यहाँ से देखो 3x square, then
एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 4। ये क्या करोगे, ये दीज टर्म्स आर कॉमन इन बोथ द टर्म्स, तो इंटू 5 एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 5। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 5 एक्स क्यूब प्लस 15 हियर एंड माइनस 3 एक्स क्यूब एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 15। तो 5 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब becomes 2x cube, and this one plus 15 that is 30. In the next step you have to write 30. Now see this x cube plus 3 whole square, और यहाँ पर क्या है x cube plus 3 whole raised to 6, so 2 powers and here 2 powers cancelled, so remaining part here only 4, जो कि अगले स्टेप में यहाँ लिखा हुआ है x cube plus 3 whole raised to 4। तो dy by dx equals 6x square into x cube plus 15 into, अब यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 30, इसमें से 2 कॉमन करोगे, देखो 2 कॉमन करोगे तो 2 इंटू 3 दैट इज 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 15 रिमेनिंग पार्ट हियर एंड एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 4 हियर, डिनोमिनेटर एज इट इज। यहाँ पर देखो कोसेंट रूल या डिवीजन रूल का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, u अपॉन v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन सिमिलर हैं तो किसी न किसी एक या दो क्वेश्चन में फार्मूले मिलेंगे, तो फार्मूले का कोई टेंशन नहीं। वैसे भी फार्मूला 11th स्टैंडर्ड का है तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और ये सब फार्मूले तो बाहर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूले के मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो फार्मूला तो एटलीस्ट बाहर करके रखिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट, फॉर द डेरिवेटिव यू शुड लर्न ऑल फार्मूले रिलेटेड टू डेरिवेटिव एंड एज फार एज पॉसिबल ऑल फार्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन विदाउट ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो अभी फिलहाल डेरिवेटिव कर रहे हो तो डेरिवेटिव में अपना ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला और डिफरेंशिएशन का फार्मूला ये अपना अच्छे से लर्न करके फिर स्टार्ट करो। एटलीस्ट कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने के पहले फार्मूला एक बार रिवाइज करो और फिर लेक्चर स्टार्ट करो, तो बहुत इंटरेस्ट आएगा करने में। ओके, चलो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। लेट y इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब। अब ये देख लो सिंपली किस टाइप का डेरिवेटिव है, u इंटू वी। किस टाइप का है, u इंटू वी मीन्स प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में अभी प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर चुके हो और यहाँ फार्मूला भी दिया गया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इक्वल्स यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया ऑलरेडी, जिससे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम न हो, और प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि फार्मूला यहाँ पर दिया गया। तो अब क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ, देखो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स यू मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बस प्रोडक्ट रूल सिंपल है, इसमें u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ v। अब ये केक का डेरिवेटिव यहाँ पर निकाल दो, तो दिस पार्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर होल क्यूब 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 3 माइनस 1 दैट इज 2 मीन्स n x रेज टू n माइनस 1 टाइप का है, बट इट इज नॉट x। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से डेरिवेटिव कर दो उसका। ओके, प्लस दिस पार्ट एज इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब ये भी x रेज टू n टाइप का है, तो यहाँ पर देख लो 2x, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखते हो 2x, तो सिंपल वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर का क्या लिखोगे 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बट इट इज नॉट x। तो बाई चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप में देखो दिस पार्ट। अभी क्या करोगे, यहाँ से 3 पहले लिख लिया, 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज एंड दिस ब्रैकेट एज इट इज। अब यहाँ से देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज फिर से एक्स स्क्वायर के टाइप में है 2 कॉस एक्स, बट इट इज नॉट एक्स। सेम प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सिमिलर यहाँ पर भी लिखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर होल क्यूब एज इट इज इंटू 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अगेन लाइक एज एक्स स्क्वायर, तो 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अगले स्टेप में सिर्फ एक चेंजेस क्या होंगे, स्मॉल चेंजेस। देखो सिर्फ इतने का डेरिवेटिव निकालना है, बाकी टर्म्स को सेम लिखो और 0 हटा दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स।
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। बाकी टर्म्स को सेम लिखो जीरो हटा के। अब देखो, अब यहाँ पर आता है ट्रिग्नोमेट्री हो गया। और पहला ये थिंकिंग करना है कि इन दोनों में, ये पूरे टर्म में और ये पूरे टर्म में कॉमन टर्म क्या है, ये पूरे टर्म को देखो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस साइन टेकन आउट, माइनस को हम बाहर रख सकते हैं। तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बनता है, साइन 2x, और माइनस साइन यहाँ पर माइनस साइन 2x लिख लो। और ये देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का। ये दोनों ही टर्म यहाँ पर और यहाँ पर ये हो गए क्या, साइन 2x साइन 2x, माइनस साइन यहाँ पर एज इट इज लगा हुआ है। तो अब देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, होल स्टेप में कॉमन क्या है यहाँ पर। तो कॉमन टर्म ढूंढने के लिए पहला साइन 2x कॉमन है, ओके। और दूसरा देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो मिनिमम टाइम कॉमन होगा यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन। और यहाँ देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, होल क्यूब, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, जो मिनिमम है वो कॉमन है, हो गया। तो कॉमन टर्म यहाँ लेने के बाद रिमेनिंग क्या आएगा, -3। इस टर्म में देखो 3 रिमेनिंग है, और क्या कॉमन है, माइनस साइन, और 1 टाइम 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो -3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 टाइम कॉमन हो गया। अब क्या करना है, ये टर्म को देखो सेम सेम और सेम टिल लास्ट स्टेप लिखना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर। तो -3 इंटू दिस, -3 इंटू 1 -3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। नाउ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म -3 plus 2, this gives -1, -3 sin square x as it is, plus 2 cos square x can be written as 1 minus sin square x, because of sin square x plus cos square x is 1, so cos square x is 1 minus sin square x। ये आइडेंटिटी है, पहले से ही पढ़ रहे हो ऑलरेडी, और ये लगभग बाहर ही होगा सबको। नाउ मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 1 जा 2, एंड 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये टोटल टर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, पहला क्या करोगे, -1 प्लस 2 दैट इज 1, -3 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स बिकम्स, both are similar, so adding them 1 minus 5 sin square x। So this is your final answer, therefore dy by dx equal to sin 2x into this into 1 minus 5 sin square x is last term। ये इस ऑर्डर में लिखो, या इनटू है तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ये कोई कंपल्सन नहीं किसी ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन सभी टर्म्स और ब्रैकेट ये ध्यान देना पड़ेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ रूट x। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। व्हाई, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व इन क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पर रेफर करोगे क्वेश्चन नंबर 2 में जाकर देखोगे तो इस रूट ऑफ cos x और स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ रूट x एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। तो पहला स्टेप क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वो ध्यान से सुनो। नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ रूट x। तो स्क्वायर रूट ऑफ cos x दैट इज रूट x टाइप का है, तो 1/2 रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ओके। और ये 1/2 रूट ऑफ cos रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos रूट x। अब उसके आगे फिर से स्टेप्स अपना डिफ्रेंशिएट करते चले जाओ, और जो चेन रूल जो इसका फंक्शंस आता जाएगा उसका अगेन एंड अगेन डेरिवेटिव करते जाओ, और फिर एंडिंग तक आंसर मिल जाएगा, ओके। तो ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इक्वल टू log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। अब ये देखो दिस इज अ सिंगल फंक्शन, ये पूरा एक ही फंक्शन है, ऐसा नहीं कि डबल फंक्शन है। एंड डोंट फॉरगेट, समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं मिस्टेक भी बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम कभी कभी स्टूडेंट 50% स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, log ऑफ sec 3x प्लस log ऑफ tan 3x। तो डोंट फॉरगेट log of sec 3x plus tan 3x, if we separate it, it is 100% wrong। log of एंटायर पार्ट sec 3x plus tan 3x ये एक ही फंक्शन है और हमेशा साथ में ही रहेगा जब तक इसके साथ log है, ओके। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल्स डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ दिस। तो डेरिवेटिव ऑफ log x, फ्यू सेकंड्स के लिए सपोज कर लो कि ये x है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x अभी तक क्या पढ़ चुके हो, 1/x। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, ये पूरा
एक्स अज्यूम करो, तो सेक 3x प्लस टेन 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 3x प्लस टेन 3x। अब ये अपने आप सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर सेपरेटली सिंगल सिंगल टर्म का डेरिवेटिव लिख सकते हो। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ सेक 3x इंटू टेन 3x, बट डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 into 1, that is 3 only. Derivative of tan 3x sec square 3x and derivative of this 3x into 3। ये थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया है, उसको चाहो तो डिटेल्स वापस से लिख सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज कॉमन इन दिस ब्रैकेट? इजिली यू कैन टेक कॉमन 3 and 3, and what is common? sec 3x and sec 3x here one time। तो देखो 3 इंटू सेक 3x कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग टर्म? tan 3x प्लस सेक 3x। अब ये tan 3x प्लस सेक 3x और यहाँ पर देखो tan 3x प्लस सेक 3x दोनों सेम है, sec 3x प्लस tan 3x और यहाँ पर भी है sec 3x प्लस tan 3x, दिस विल बी क्रॉस आउट, कैंसल्ड। तो व्हाट इज योर आंसर? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू सेक 3x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जहाँ पर भी आएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन जस्ट सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। लेट y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ये है डिग्री, इसको जीरो नहीं रीड करोगे, और अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। तो कोई भी क्वेश्चन अगर डिग्रीज में दिया गया है तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि डिग्रीज में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि अपना डेरिवेटिव इसके लिए बोला गया डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिग्री। तो फर्स्ट वर्क ये सोचो कि व्हाट इज 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, ये डिग्री एंड रेडियन का रिलेशन है फॉर्मूला। देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू पाई इंटू एक्स अपॉन 180 रेडियन। तो x डिग्री को हम क्या लिखेंगे? पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। ये पाई एक्स अपॉन 180, पाई एक्स अपॉन 180 यहाँ पर लिख लो। रेडियन की साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिंपल x में आ जाता है। तो 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180, 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ डेरिवेटिव? अब इसको देखो, व्हाट इज द टाइप ऑफ डेरिवेटिव? u अपॉन v मीन्स कोसेंट रूल। तो व्हाट इज द कोसेंट रूल? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद फार्मूला लिखोगे अपना कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इक्वल्स वी डेरिवेटिव ऑफ वी 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 डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। तो सेम उसी टाइप से यहाँ पर देखो वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर। This bracket as it is. What is derivative of 1? 0. Derivative of sin pi x upon 180 becomes cos pi x upon 180, but it is not x. ये term को देखो into d by dx of pi x upon 180. The same way in the second part, this bracket as it is. Derivative of 1 is 0. Derivative of sin pi x upon 180 here cos pi x upon 180, but it is not x into d by dx of pi x upon 180 upon denominator's whole square. After this bracket as it is, देखो 0 plus something, that is this part only, and derivative of pi x upon 180। देखो pi upon 180 इसमें क्या है? कांस्टेंट। जैसे भी डेरिवेटिव ऑफ 5x रहता तो क्या लिखते? 5 इंटू 1। ओके, वैसे डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 है तो पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो ओनली पाई अपॉन 180 इंटू 1, दैट इज पाई अपॉन 180। सिमिलर टर्म्स यहाँ पर देखो 0 माइनस कॉस पाई एक्स ओनली माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180, इसका डेरिवेटिव सेम पाई अपॉन 180। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर। अब ये देखो कि व्हाट इज द कॉमन इन दीज टू? पाई अपॉन 180, वी सी दैट पाई अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 कॉमन, यहाँ पर कॉमन रख लो बाहर, इंटू 1 माइनस दिस पार्ट 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, और यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, ये प्लस प्लस 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180, प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 गेट कैंसल्ड, तो 1 प्लस 1 बिकम्स 2। तो पाई अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 और ये पूरा ब्रैकेट मिला के क्या हो गया? ओनली 2 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो सी इन द नेक्स्ट स्टेप, therefore dy by dx equals pi upon 180 into cos pi x upon 180 into 2 divide by 1 minus sin pi x upon 180 होल स्क्वायर। अब ये देखो 2 इंटू दिस, 2 से क्या करो? इसको कट कर दो, 2 9 18, 2 0 0, तो पाई अपॉन 90
और ये पाई एक्स अपॉन 180 क्या था, पाई एक्स अपॉन 180 क्या है, रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री, यही लिखे थे ना क्वेश्चन के टाइम पर, एक्स डिग्री इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग एज एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर, मीन्स जैसा स्टार्टिंग में क्वेश्चन था डिग्रीज में वैसे ही आंसर में लिख के छोड़ दो। तो डी वाई बाई डी एक्स पाई इंटू कॉस एक्स डिग्री अपॉन 90 इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। बस ये फिनिश हो गया। तो किसी भी फॉर्म में लिख के छोड़ सकते हो। अगर रेडियन में आंसर चाहिए तो ये स्टेप लिख के छोड़ सकते हो, डिग्रीज में चाहिए तो ये लिख के छोड़ सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अभी क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है और ये टाइप का क्वेश्चन भी कर चुके हो पहले। ये क्वेश्चन भी तो सभी स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क दिया गया है और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। और हिंट के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, y इक्वल टू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंटायर अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट ऑफ एक्स एंटायर अपॉन 2। तो डेरिवेटिव एक एक का डेरिवेटिव करना है, u माइनस वी मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। जैसे इसको एक्स अज्यूम करोगे तो क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स अपॉन 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन 2। ओके, तो उसमें log ऑफ एक्स अपॉन 2 में 1/2 आउट, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स, माइनस log ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2 1 अपॉन कॉट एक्स अपॉन 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2 आएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ cot x अपॉन 2 हाफ आउट एंड डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दो, इट इज योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो होमवर्क में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। लेट y इक्वल टू e raised to 2x माइनस e raised to माइनस 2x अपॉन e raised to 2x प्लस e raised to माइनस 2x। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान दो यहाँ पर कि ये क्वेश्चन u अपॉन वी टाइप का है, और ये देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक प्लस, यहाँ माइनस साइन है यहाँ प्लस साइन है, इसका पावर नेगेटिव नेगेटिव और इसका पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस देयर आर टू मेथड्स फॉर दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन के लिए टू मेथड्स कैसे फॉलो करोगे, एक तो डायरेक्टली यू अपॉन वी अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा मेथड है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो मैंने दोनों मेथड यहाँ दे दिया है, जिस मेथड से जिसको इजी लगे उस मेथड से कर सकते हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी ऑप्शंस दूसरा दिया रहता है, या कभी जो सेकंड आंसर मैंने दिया है यहाँ पर देख सकते हो, अभी आगे जो सेकंड मेथड दी गई है इसकी ये है, तो कभी कभी ये ऑप्शन में दिया रहेगा, दिस पार्ट कभी ये आंसर में रहेगा और कभी कभी ये आंसर में रहता है। तो जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो दोनों मेथड से क्वेश्चन करोगे तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में किसी भी मेथड से कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो पहले u अपॉन v दैट इज कोसेंट रूल, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। So this equals this bracket as it is. What is derivative of e raised to 2x? E raised to 2x into derivative of 2x into 2, मतलब साथ में लिख दिया गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ e raised to माइनस 2x, e raised to माइनस 2x into derivative of माइनस 2x इज माइनस 2, ये जो लिखा। फिर दिस ब्रैकेट एज इट इज, क्योंकि इसके पहले कोई डी बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ब्रैकेट, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ब्रैकेट सिमिलर, e raised to 2x into 2 प्लस e raised to माइनस 2x into माइनस 2, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। अब क्या करोगे यहाँ पर, देखो इस टर्म में अभी लिखने के लिए इनमें 2 और 2, ये 2 है कॉमन, ये 2 बाहर कर लो, e raised to 2x प्लस e raised to माइनस 2x, और यहाँ पर e raised to 2x और ये माइनस इंटू माइनस, ये भी हो जाएगा e raised to 2x प्लस e raised to माइनस 2x। सिमिलरली 2 इज कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, देखो 2 2 कॉमन हो गया, और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस ब्रैकेट में दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो वी सी दैट लाइक एज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो और भी फार्मूले हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बिकम्स व्हाट, क्या आता है 4ab, देखो प्लस 2ab, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर है, तो स्क्वायर टर्म्स गेट कैंसल्ड, वी गेट 4 टाइम्स ए बी। एक्सपैंड करके देख सकते हो, ये फार्मूला आएगा 2 इंटू 4 टाइम्स ए इंटू बी अपॉन सेम डिनोमिनेटर।
अब इसमें क्या करोगे, देखो ई रेज टू 2x इंटू ई रेज टू माइनस 2x, इन दोनों का पावर ऐड करोगे बिकॉज ऑफ सेम बेस बाय इंडाइसिस रूल। तो 2x माइनस 2x क्या होता है, ई रेज टू 0 हो जाएगा, और ई रेज टू 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 2 इंटू 4 इंटू 1 बिकम्स व्हाट 8 अपॉन डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर। एक मेथड तो ये हो गया। और दूसरा मेथड देखो, सेम क्वेश्चन अनदर मेथड। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, y इक्वल टू सेम थिंग, इसको और इसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर लो। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन ई रेज टू 2x 1 अपॉन ई रेज टू 2x रेसिप्रोकल्स। नाउ दिस इंटू दिस ई रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 2x, और यहाँ पर आएगा e इंटू दिस ई रेज टू 4x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू 2x। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गेट कैंसल्ड। ओके, तो फिर से u अपॉन वी टाइप का ही क्वेश्चन बना यहाँ पर। तो u अपॉन वी टाइप का सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर of this bracket as it is derivative of e raised to 4x, e raised to 4x into 4 and derivative of 1 is 0. This bracket as it is derivative of e raised to 4x same into 4 upon denominators whole square. Now e raised to 4x into 4, e raised to 4x into 4 common in these two, we write here. Remaining part e raised to 4x plus 1 minus e raised to 4x, and here minus into minus plus 1. This is cancelled. Plus 1 plus 1 that is 2. So 4 into 2 8 e raised to 4x upon e raised to 4x plus 1 होल स्क्वायर। ये इसका सेकंड आंसर है, सेकंड मेथड। तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। Let y equal to e raised to root x plus 1 upon e raised to root x minus 1. Similar question, u upon v type again. Same process. देख लो v डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन u होल स्क्वायर। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर दैट इज डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर। तो सेम वे में जाना है अभी, फिर से सेम ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ e raised to root x e raised to root x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ 1 यहाँ पर इट्स डेरिवेटिव इज 0। सिमिलरली हियर e raised to root x डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। तो अब इसमें देखो कॉमन क्या लेते हो, ई रेज टू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ई रेज टू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, दिस इज कॉमन। ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्या करना है, कॉमन यूज कर लो। ये कॉमन कर लिया, तो आफ्टर कॉमन e raised to root x minus 1 minus e raised to root x minus 1, this is cancelled, same denominator. Now minus 1 becomes minus 2. Okay, now this 2 and 2 get cancelled. Your answer is minus e raised to root x upon this root x into e raised to root x minus 1 whole square. सिमिलर क्वेश्चन था, तो इसको इजिली यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे देखो, फ्रॉम क्वेश्चन 12 थोड़ा सा चेंजेज आएगा यहाँ से। लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ tan क्यूब x इंटू साइन रेज टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल रेज टू 7। देयरफॉर y इक्वल्स log of tan क्यूब x प्लस log of साइन रेज टू 4x प्लस log of एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल रेज टू 7। ऐसा क्यों लिखा गया, उसका रीज़न यहाँ पर देख सकते हो कि फार्मूला फॉर log a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स log a प्लस log b प्लस log c। मीन्स कितने भी टर्म मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो उसको प्लस 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 करके लिख सकते हो बाई लॉगरिथमिक फार्मूला। ओके, तो दिस इज log ऑफ tan क्यूब एक्स। अब log tan x क्यूब क्या है, log ऑफ m रेज टू n। यहाँ देखो log ऑफ m रेज टू n बिकम्स व्हाट n इंटू लॉग m। तो ये 3 इसका यहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ लिखा गया 3 इंटू लॉग ऑफ tan x। सिमिलरली log sin 4 log sin रेज टू 4x, 4 comes first, log of sin x. Similarly, x square plus 7 whole raised to 7, 7 comes first here, 7 log of x square plus 7। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं बचा डेरिवेटिव में, अब सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 लॉग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log tan x 1 अपॉन tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑफ log sin x, जैसे डेरिवेटिव ऑफ log x का फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 अपॉन x, वैसे ही log sin x के लिए 1 upon sin x into derivative of sin x, and derivative of log x square plus 7 into this 1 upon x square plus 7 into d by dx of x square plus 7। अब सिर्फ इनके ब्रैकेट टर्म्स के डेरिवेटिव यहाँ पर देखो, डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर है, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 ओनली 2x प्लस 0, तो 0 नो नीड टू राइट, ओनली 2x। नाउ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो tan x को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan x क्या है cot x, और cot x की फार्मूला होती है cos अपॉन साइन।
sec square x 1 upon cos square x, and here cos x into 1, that is cos x upon sin x, here 2x into 1 2x upon x square plus 7. अब यहाँ देखो वन टाइम cos x गेट कैंसल्ड, ये कट हो गया, तो ओनली sin x इंटू कॉस एक्स रिमेनिंग आता है, sin x इंटू कॉस एक्स, बट आवर फार्मूला इज 2 sin x cos x, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2 डिवाइडिंग बाई 2, क्यों किया गया ऐसा, जिससे ये sin 2x का फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बिकम्स sin 2x, यहाँ पर देखो, और 3 इंटू 2 6 अपॉन sin 2x, और यहाँ cos अपॉन sin cot x, दैट इज 4 cot x. Here 7 into 2x 14x upon x square plus 7 as it is here, and this is your answer. So 6 upon sin 2x becomes what? 6 into cosec 2x, because 1 upon sin x is cosec x, 1 upon sin 2x is cosec 2x. This is same, no change. So this is your final answer. Okay, ये फाइनल आंसर है अपना, नोट करके रखो. आगे देखो, ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन है कि y इक्वल टू log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा टाइप और ये 1 प्लस कॉस थीटा टाइप, वी हैव फार्मूला, कौन से फार्मूले हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2. तो इसको थीटा एज्यूम कर लो, 3x को थीटा और यहाँ वही 3x को थीटा. तो अगले स्टेप में देखो इसको क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा 2 sin square 3x upon 2, 2 cos square x 3x upon 2. Here 2 get cancelled, taking square root. तो sin x upon cos x tan 3x, log of tan 3x upon 2. अब ये सिर्फ इसका ही डेरिवेटिव करोगे, बाकी क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पर. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, d by dx of log of tan 3x upon 2. So 1 upon tan 3x upon 2 into d by dx of tan 3x upon 2. Derivative of tan sec square 3x upon 2 as it is into d by dx of 3x upon 2. तो 3x upon 2 का डेरिवेटिव क्या है, ओनली 3 by 2 into 1, दैट इज 3 by 2. अब इसका देखो 1 upon tan, फिर से cot x, तो cot को क्या लिख सकते हो, cos 3x upon 2 upon sin 3x upon 2, sec square 3x upon 2 1 upon cos 3x upon 2, वन टाइम कैंसल्ड, फिर से sin x इंटू cos x इंटू 2 मीन्स 2 sin x इंटू cos x का फार्मूला हो गया, यहाँ पर देखो ओनली 3 इज रिमेनिंग इन द न्यूमरेटर, सो 3 अपॉन दिस मच. और 3 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो क्या लिखते हो, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा क्या है 3x अपॉन 2, तो दिस 2 गेट कैंसल, दिस गिव्स 3 अपॉन साइन 3x, और 3 अपॉन साइन 3x क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन एक्स इज कोसेक एक्स, तो 1 अपॉन साइन 3x इज कोसेक 3x, ये फार्मूला है देखो, dy by dx 3 cosec 3x. Similar question. So try this question in the homework. Log of 1 plus cos 5x upon 2, 1 minus cos 5x upon 2. सेम उसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ प्लस और माइनस. प्रीवियस क्वेश्चन में देखो कैसा था, यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर ये प्लस माइनस का इंटरचेंज हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था. अगले 14 क्वेश्चन में 13 में क्या, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सेम यही फार्मूला अप्लाई करोगे, हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ करो. तो यहाँ पर जो टर्म्स है ये 5x अपॉन 2 5x अपॉन 2 ये हो जाएंगे 5x अपॉन 2 और यहाँ पर भी अपॉन 2, और ये कन्वर्ट होगा कॉस और ये कन्वर्ट होगा साइन. सेम फार्मूला ट्राई करके सॉल्व करो. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में अपना एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन नंबर लीव करो, सॉल्यूशंस अगले लेक्चर में मिल जाएगा. नाउ 15th, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. अब इनके जो फार्मूले हैं ये डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि उसी टाइप से आएगा, ये डिफरेंट है, तो इसका फार्मूला यहाँ लिखा गया. देखो 1 माइनस साइन एक्स, ये 1 क्या होता है, पहले 1 को देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, राइट. और साइन एक्स को हम हाफ एंगल में लिख सकते हैं -2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, मीन्स क्या बनने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, विच इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर. या किसी स्टूडेंट को अगर मान लो यहाँ नहीं समझ में आता है तो ये स्टेप को एक्सपेंड कर दो, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से एक्सपेंड करके देखोगे ये मिल जाएगा. सिर्फ डोंट फॉरगेट आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज 1. सिमिलरली a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे 1 प्लस साइन एक्स मिलेगा, ठीक. Now taking square root of both because of square root, so we get log of cos x upon 2 minus sin x upon 2 upon similar cos x upon 2 plus sin x upon 2. Now
वी सी दैट इट इज कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन टाइप। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए विथ एनी एंगल, जैसे x अपॉन 2 हो, यहाँ पर x है, 3x है, 3x अपॉन 2 है, 5x है, एनी नंबर कैन कम। तो वी शुड डिवाइड बाय cos x अपॉन 2 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द ब्रैकेट्स ओनली, बाहर नहीं, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करोगे। डिवाइडिंग बाई कॉस, देखो cos x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2, यहाँ पर क्या आएगा 1, और साइन अपॉन कॉस यहाँ पर हो जाएगा क्या आएगा tan, यहाँ पर cos अपॉन कॉस 1 और साइन अपॉन कॉस दैट इज tan, वो अगले स्टेप में यहाँ पर देखो log ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 2 1 प्लस tan x अपॉन 2। अब ये किस टाइप का फॉर्मूला है, देखो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये टाइप का अगर क्वेश्चन है तो उसकी फार्मूला ये है tan ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा। 45 डिग्री क्या होता है 1, तो tan इसको रेडियन में लिखो, यहाँ पर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू दिस मच। देयरफॉर दिस एंटायर पार्ट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू लॉग ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव करने के लिए रेडी है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेडी हो गया क्वेश्चन। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 2, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट dy बाई dx log ऑफ दिस दैट इज 1 अपॉन सेम टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log tan, तो log निकल गया अभी क्योंकि उसका डेरिवेटिव हो चुका है 1 अपॉन टेन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2, और डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखोगे ये, बट इट इज़ नॉट थीटा या इट इज़ नॉट एक्स, जो भी बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। सिंस पाई बाई 4 इज कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव इज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन 2 1 अपॉन 2 माइनस साइन एज इट इज। नाउ सी दिस 1 upon tan again cot x and cos upon sin sec square 1 upon cos square into minus half, तो minus 1 ओनली, देखो वन टाइम हियर कैंसल्ड, वन पार्ट ये cos पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 एंड वन टाइम हियर कैंसल्ड, so this is minus 1 upon 2 sin theta into cos theta type, तो sin 2 into this minus 1 upon sin 2 थीटा, ये थीटा है पूरा राइट, sin 2, अब ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू पाई बाई 4 क्या मिलता है पाई अपॉन 2, बिकॉज 2 2 जा 4, एंड 2 इंटू माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, अभी साइन 90 माइनस थीटा या साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज cos x, तो माइनस 1 अपॉन cos x इज माइनस sec x, देयरफॉर dy by dx इक्वल टू माइनस sec x। Okay, now see question number 15th. Let y equal to log of 4 raised to 2x into x square plus 5 upon square root of 2x to minus 4 whole raised to 3 by 2। इसमें देखो this into entire bracket whole raised to 3 by 2, तो log m into n टाइप का फॉर्मूला है, किस टाइप का log m into n, तो log m into n टाइप का है तो क्या लिखोगे log m प्लस log of n, लेकिन log n में क्या है m अपॉन n भी है, तो ये 3 बाई 2 कम्स आउट log m माइनस log m, ये साथ में लिख सकते हो इतना। नाउ 4 रेज टू 2x कैन बी रिटन एज 2x इंटू लॉग 4 log m रेज टू n फार्मूला, 3 बाई 2 एज इट इज log x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, और ये क्या है स्क्वायर रूट मीन्स होल रेज टू हाफ, तो हाफ कम्स आउट फर्स्ट log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4, क्योंकि log m रेज टू n क्या होगा n इंटू लॉग m, यहाँ पर भी वही है सेम n इंटू लॉग m। Now you can differentiate it, differentiating with respect to x, so dy by dx equals 2x, देखो डेरिवेटिव ऑफ 2x, और ये log 4 क्या है कांस्टेंट, तो ऐसा नहीं कि यहाँ u इंटू वी स्टार्ट कर दो कंटिन्यू, नो इट इज़ नॉट गुड, log 4 इज कांस्टेंट टेकन आउट, डेरिवेटिव ऑफ 2x ओनली, 2 भी कांस्टेंट है बाहर ले सकते हो, या डेरिवेटिव ऑफ 2x शो कर दो, तो ये बाद में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 log 4, 2x log 4 का क्या हो गया 2 log 4, और यहाँ पर देखो 3 बाई 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ दिस 1 अपॉन दिस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, माइनस हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x क्यू माइनस 4, तो हाफ एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग 2x क्यू माइनस 4 1 अपॉन 2x क्यू माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यू माइनस 4, तो अगले स्टेप में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब 2 इंटू 3x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 0। ओके, सी दिस, यहाँ पर सेम टर्म्स लिखे गए, अभी 2 log 4 एज इट इज, यहाँ पर देखो दिस 2 एंड 2 गेट कैंसिल, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस, देखो 2 3 जा 6 से कट कर दो यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर इंटू 3 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 1 2 रिमेनिंग एज इट इज एंड ब्रैकेट 2x क्यूब माइनस 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो सिमिलर क्वेश्चन को सिमिलर वे से ही सॉल्व कर सकते हो। y इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस 4x रेज टू 3/2, ये सिर्फ न्यूमरेटर का ही रेज टू 3/2 है, अपॉन क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x। तो देखो ये रेज टू 3/2 है, यहाँ रेज टू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ होल रेज टू क्या हो जाएगा 1/3। तो अगर हम लोग लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इनटू के लिए लॉग एम इंटू एन के लिए लॉग एम प्लस लॉग एम, अपॉन के लिए माइनस, तो जो इनके पावर हैं वो भी साथ में बाहर रख दिए गए। क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यू करते आ रहे हो तो डिटेल्स लिखना है तो वन मोर स्टेप लिख सकते हो बीच में, या डायरेक्टली इस टाइप से भी लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर लॉग ई, और log e का वैल्यू क्या होता है 1, ये सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए अगले स्टेप में log e नहीं दिखेगा। 3/2 log ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 log ऑफ 7 माइनस 6x, डिफ्रेंशिएटिंग। तो log e का हो गया 1, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ 3/2 log ऑफ दिस 3/2 एज इट इज log 1/5 माइनस 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ 4x इज -4, -4x का -4। ये एक स्टेप डायरेक्ट यहाँ पर एज अ हिंट ही समझो, इसमें अपना डिटेल्स में लिख सकते हो। -1/3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log 7 माइनस 6x 1/7 माइनस 6x इंटू d/dx ऑफ 7 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ -6x इज -6। अब इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म अगले स्टेप में कर दो, दिस इज योर आंसर। 2x एज इट इज, दिस इज here 2 2 जा 4, ये कट कर दो, तो 3 इंटू -2 दैट इज -6/5 माइनस 4x, और यहाँ पर 3 2 जा दिस, तो एंड हियर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +2/7 माइनस 6x, इट इज योर फाइनल आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18। तो 18th क्वेश्चन भी मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन सिमिलर है। इफ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। लेट y इक्वल टू log ऑफ a raised to cos x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो एक स्टेप मैं बता देता हूँ, इसको क्या लिखोगे, लॉग ऑफ ए रेज टू कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल क्यूब माइनस लॉग एक्स। फिर से ये पावर्स इसके मल्टीपल हो जाएंगे और ये पावर भी साइड में आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 टर्म्स का डेरिवेटिव यहाँ पर निकालोगे, आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सी केयरफुल्ली और यू कैन से वेरी केयरफुल्ली। y इक्वल टू 25 रेज टू log ऑफ sec x टू द बेस 5 माइनस 16 रेज टू log ऑफ tan x टू द बेस 4। तो देखो यहाँ पर बेस 5 और यहाँ पर बेस 4 उसका देने का रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि दिस इज स्क्वायर ऑफ 5 एंड दिस इज 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 25 is the square of 5 and 16 is the square of 4, only these two changes in the next step. Now this can be written as 5 raised to, अब ये 2 कहाँ पर आएगा, पावर ऑफ सेक, यही था ना अभी कि अगर log sec स्क्वायर एक्स होता तो क्या लिखते 2 log sec x, तो ये इसका पावर बन जाएगा यहाँ पर। अब ये पावर हो गया तो क्या लिखोगे, therefore y इक्वल टू 5 raised to log sec स्क्वायर एक्स टू द बेस 5 माइनस दिस स्क्वायर इज द पावर ऑफ 10, तो यहाँ पर भी सिमिलर, तो 4 रेज टू लॉग ऑफ 10 स्क्वायर एक्स टू द बेस 4। और ये टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले ये फॉर्मूले को बाहर रखो कि a रेज टू लॉग एक्स टू द बेस a, देखो मेन बेस एंड बेस ऑफ द लॉगरिथम्स आर सेम, देन यू कैन से a रेज टू लॉग एक्स टू द बेस x बिकम्स x ओनली। तो ये x अपना क्वेश्चन में देखो क्या है, x है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर है tan स्क्वायर एक्स, ओके, रिमेनिंग टर्म्स आर एलिमिनेटेड, therefore y equal to sec square x minus tan square x, and you know very well 1 plus tan square x equal to sec square x identity, therefore sec square x minus tan square x is 1, therefore y equals 1। So differentiating with respect to x, so dy by dx equals d by dx of 1, what is derivative of 1, easily you can say it is constant, so derivative of 1 is 0, so dy by dx becomes 0, okay, very important question for the competitive exams and for other exams. Now see 20th sum, let y equal to x square plus 2 whole raised to 4 upon square root of x square plus 5। अब ये किस टाइप का है देख लो, u upon v टाइप। अगेन
v derivative of u minus u derivative of v upon v square by quotient rule. So differentiating this, we get this step. Therefore, dy by dx equal to square root of x square plus 5, derivative of x square plus 2 whole raised to 4, 4 into x square plus 2 whole raised to 4 minus 1, that is 3. And d by dx of x square plus 2 by chain rule या functional function terms जो भी कह लो, minus x square plus 2 whole raised to 4 as it is, derivative of root x 1 upon 2 root x square plus 5, d by dx of x square plus 5, यहाँ पर देखो derivative of x square plus 5 2x, derivative of 5 is 0, no need to write, and derivative of x square 2x, derivative of plus 2 is 0, so no need to write. Now see this. तो पहला ये टर्म देखो कि इसमें करना क्या है अभी, ये 2 रूट, ये 2 और ये 2 कट कर दो, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो रूट रूट क्या हो जाएंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, रूट विल बी कैंसल्ड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओनली, दिस 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब इंटू 2x माइनस ये 2 कट हो चुका है, पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू 4 ये टर्म, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो एंटायर अपॉन दिस पार्ट एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 वो लिख लिया यहाँ पर इन द डिनोमिनेटर, और दिस डिनोमिनेटर एज इट इज, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था यहाँ पर सबसे ऊपर, देखो यहाँ से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान भी देना है कि अपने टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर माइनस लिखा है, यहाँ पर उसको प्लस करेक्शन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया है, उसको प्लस करके सॉल्व करके लिखोगे तो करेक्ट आंसर पर पहुँच जाओगे, और अगर माइनस से करोगे तो अपने टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं करेगा, बस ये डिफरेंस है दोनों में, तो इसको प्लस करके लोगे तो टेक्सटुअल आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो ये मिस्टेक है, यहाँ प्लस करके सॉल्व करना, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा और कोई रीज़न नहीं है स्टार का। नाउ सी कंटिन्यू, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 इंटू दिस मच माइनस 2x एंड दिस, ये एक्सप्लेन हो चुका। आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब इंटू, अब यहाँ पर देखो 4 इंटू 2x 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब यहाँ पर कर चुके हो कॉमन, और यहाँ रिमेनिंग क्या है, x इंटू 1 टाइम दिस पार्ट अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, देखो इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है हाफ, तो दोनों का बेस सेम है, तो 1 प्लस हाफ बिकम्स 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल रेज टू 3/2। ओके, अब आगे देखो, अब इसमें देखो एक्स एक्स भी कॉमन था, राइट, एक्स एंड एक्स वो भी कॉमन कर लिया, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब एज इट इज, रिमेनिंग पार्ट 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो 8x 8 इंटू दिस 8x स्क्वायर 8 इंटू 5 प्लस 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 7x स्क्वायर प्लस 40 माइनस 2 दैट इज प्लस 38 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल रेज टू 3/2, therefore dy by dx equal to x into x square plus 2 whole cube into 7x square plus 38 upon x square plus 5 whole raised to 3/2। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को अच्छे से सभी क्वेश्चंस ऑल द 20 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी किसी को डाउट्स है तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, तो क्वेश्चन अगले लेक्चर में उसका सलूशन मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।